Chalo. Good morning. Today what we are going to study about the trusses. Now what is truss? What is truss? Truss is a pin jointed structure. We are in truss, we are going to study only the pin jointed structure. Suppose you have seen the various in the roof. In the roof, the structure is covered by a roof truss that is known as trusses. Okay, so if a structure is having a pin jointed, then it is known. If the structure is pin jointed, then it is known as truss. Okay, now what are the forces that is going to act on a truss? Truss is going to resist, or the resisting force to the applied loads are always axial. I have told you truss is always going to take the axial force, which may be compression or tension. So this is what the basic idea about the trusses. Now in general, what is the example of the where you are going to use the trusses? In roof trusses. In roof you are going to use the truss that is known as roof trusses. So there is a definition. In roof trusses, loads are applied at the joint. Just make it clear that in trusses always the loads are applied to the joint, and all the joint are connected through the smooth pin, that what is known as pin jointed. Now, and the dead weight of the truss members are taken to be negligible. This is what we are going to consider in the assumption. There are certain assumption in studying the trusses. What are the various assumptions? First assumption is all the joints are ideally hinged. What do you mean by this? Suppose there is a member and it is connected like this. So this joint is ideally hinged. What do you mean by ideally hinged? It is not having some friction. That is what known as ideally hinged. If there is friction, some other force will occur. So this is the first assumption. What is all joints are ideally hinged. Now coming to the second assumption. What is second assumption? The self weight of the truss member are neglected. I have told you, if you are going to consider the self weight of the member, then it will going to occur, it will going to have some bending moment. So here we are going to take the bending moment equal to 0. That's why the second assumption is self weight of the truss member are neglected. Now coming to the third assumption, loads at the joints, loads are taken at the joints only. This is the third assumption. I have told you that you will not have any load in the member. Why? Because if the load is at the member, then there will be the case of deflection. So we are not considering the bending moment, we are not considering the deflection. That's why the loads are applied at the joint only. This is what the basic idea about the basic assumptions what we are taking in the trusses. Why we are taking these assumptions? Because we are going to solve the determinant. We are going only to solve the determinant truss. That's why we are going to take some assumption. If we are not going to take the assumption, then there may be several other forces are also act on the truss, that it will create complexity of the structure, and it will create so many forces that will act on your truss. So it is very difficult to find out the force. This is what the basic assumption or the basic assumption that you are going to take. Now coming to the various how you are going to analyze the truss. There are two methods of analysis of the truss. First one is method of joint, second one is method of section. Now what is method of joint and what is method of section? With the help of method of joint, you are going to find out the all the forces in the, suppose there is a truss, if you want to find out the member in all the forces in all the members, then it will be solved by the method of joint. You have to consider a single joint separately and draw the free body diagram of that. And you will consider the two types of force, compression and tension force. In that you can assume any. Suppose compression is outside, so you will take the direction, and if you will get the negative, it will be compressive. So you will draw the free body diagram and solve the equation with the help of summation of Fy equal to 0, summation of Fx equal to 0. You will get the all the forces in the member. This is what known as method of joint. Now where you are going to use the method of section, where you have to cut the section, and you have only three members that you are going to solve. Because why you are going to use three members? Because you have only three equilibrium equations that you can use. That's why in the method of section you have to cut that section, and the section where you are cutting that have to pass from the three members only, so that it can be solved easily with the help of equilibrium equation. This is what the basic idea about the types of method that you are going to use in the truss analysis. Now one more thing that you have to use
in the that is known as zero member forces. So while solving the truss, you have to know which member is having the zero forces. So for that, there are some rules. Two rules are given to you. What are the rules? I'm going to tell you. If at any truss point there are two members which are non-collinear and no load is, suppose this is your member, this is another member. These are the member known as collinear. If this is like a member and this is non-collinear, suppose there is a two member in any truss joint and the two members are non-collinear and no load is acting on that. If there is no load acting on that, both the member would be have zero forces. It is clear? So there is condition that the two members should not be collinear and they are not having any load on that. Then these type of member will be considered as zero force member. This is what the first rule. Now coming to the second rule, if at a truss joint three members are acting or three members are meeting and two of are collinear. Suppose there is three members. Suppose these are 1, 2 and another member is like this. These are the three members that are acting at a point, but the two of them are collinear and one is non-collinear. So according to the rule, the third member that is this will have the zero member force. This is what the basic idea about the truss analysis. So with the help of these two rules, you are going to find out the zero forces member and you can just solve you can apply the equilibrium equation and you can solve it by the method of section and method of joint. This is basic idea about the truss analysis. You can use this analysis also on the various members. Suppose there is hundreds of members are there and you want to apply the method of joint. It will be some typical, but you can apply the method of section. Now method of section is good for the objective view. Suppose you have to solve in a particular member, then you can directly apply the method of section. And if you want to find out the member forces in all the member, then you can provide the method of joint. This is basic idea about the truss analysis. Now we are going to see what are the through the PPT also we can see. चलो अभी तक मैं यही बता रहा था, सबको क्लियर है, दिखाई दे रहा है? Now this is what the method of section, and I have told you there are three equilibrium equations that you can use: summation of h equal to 0, summation of v equal to 0 and summation of m equal to 0. ठीक है? So what are the other things that you can use? This is how we are going to solve. This is find the forces in the member. Suppose there you have to find out the forces. देखो, I know that you can find out the reactions, so I am not considering about the reaction. Suppose how you are going to solve the question. एक मिनट मेथड ऑफ सेक्शन आपको दिखाना था. देखो अब how you are going to classify that it is the method of joint, how we are going to solve the question. If it is going to find out the forces in the member in a particular member, suppose it is asking in CE, CF and FH, then you can apply direct the method of section. You will suppose CE is the member. What you will do, you will take the CE member and you will cut a section through it. So when you will cut the section, there are three member forces that you have to find out. That is CE, CF from the particular joint. Suppose at the E joint you will have two member forces. So like this you are going to solve. अब देखो यहां से देखते हैं शुरुआत से. व्हाट इज द, पहला तो ये देख लेते हैं और भी न्यूमेरिकल है. सबसे पहला पहले मेथड ऑफ जॉइंट देख लेते हैं. ठीक है, एट पर्टिकुलर पॉइंट ए. ठीक है, अभी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये था. ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा. ठीक है, फाइंड द फोर्सेस इन द मेंबर इन द ट्रस. हमें सारे मेंबर फोर्स निकालने हैं. ठीक है, सारे मेंबर फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द रिएक्शन. व्हाट शुड बी द रिएक्शन एट ए, व्हाट शुड बी द रिएक्शन एट बी. आफ्टर दैट सपोज FAB, you have to find out the force in FAB. So you have to just resolve the component of this. You have directly find out the reaction. This RA plus RB will be equal to 20 plus 20 plus 20, that will be 60. So like this you will find out the reactions. After that what you will do, you will have to just there are two member at the joint AB and AF. So what should be FAB? FAB is the force that is acting in this member. So how you are going to find out?
सब साइन थीटा सॉरी हॉरिजॉन्टल विल बी हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल की बात ही नहीं है. डायरेक्टली यू विल जस्ट find out the reaction, and that reaction will be the force in Fa. Okay, that will be coming vertically. The reaction that is coming to the A point, that will be vertical reaction. Now when this will be multiplied by cos 90, it will give the horizontal component. So vertical component at A, vertical component at B will be the forces that are going to resolve in the AB member. ठीक है, कुछ आइडिया बन रहा है, नहीं बन रहा है? चलो एक बार ये ट्राई करते हैं. ठीक है, क्या बोला है? डिटरमाइन द फोर्सेस इन ईच मेंबर ऑफ द ट्रस. ठीक है, हमें इस मेंबर पे फोर्स फाइंड आउट करना है. ठीक, अब ये फिगर एक बार देख लो, है ना. ठीक है, ये जॉइंट है ए बी सी डी ई. ये वाला क्वेश्चन शायद हमने किया था, क्या नहीं किया था? चलो कोई बात. ठीक है, अब सबसे पहला काम है यू हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम पे हमने क्या क्या बना लिया? हमको पता है कि हिंज पे हमारे दो रिएक्शन होते हैं. हमने बना लिया ए एक्स और ए वाई, बी वाई और, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन बना लिए. ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे? मोमेंट इक्वल टू 0. ए पे मोमेंट ले लेंगे तो हमारे पास आरबी की वैल्यू आ जाएगी. तो हमने मोमेंट इक्वल टू 0 ले लिया. अब एक बार फिगर देखते जाओ. ठीक है, फिगर देखने से बी वाई रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज योर रिएक्शन एट ए. बी वाई के कारण जो रिएक्शन आ रहा होगा, प्लस 900 मल्टीप्लाइड बाई योर 2 मीटर, जितना का डिस्टेंस है ए पॉइंट तक. ठीक है, इसी तरह प्लस, सब क्लॉकवाइज ही लग रहे हैं तो सारे प्लस 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 600 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिस्टेंस. ये 600 का लोड दिख रहा है यहाँ पे, 600 मल्टीप्लाइड बाई 4. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगर कहीं रोकना हो तो बता देना. ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ गया? बी वाई रिएक्शन आ गया. ठीक है, बी वाई रिएक्शन हमारा आ रहा है -2100. इसका मतलब क्या है? इट इज एक्टिंग अपवर्ड. ठीक है, जो हमने बी वाई का डायरेक्शन बनाया ना, नीचे की तरफ बनाया है. ठीक है, तो वो अपवर्ड लग रहा है. अगर वो नेगेटिव आता है तो उसका मतलब अपवर्ड है. जो हमने डायरेक्शन लिया उसका अपोजिट है. बस इतना सा. ठीक है, नाउ कमिंग टू द समेशन ऑफ एफ वाई. अब एफ वाई इक्वल टू 0 रखेंगे, मतलब क्या है? ऑल द वर्टिकल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन योर दिस ट्रस विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, तो वर्टिकल फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं? वर्टिकल फोर्स है हमारे पास, दैट इज ए वाई और बी वाई. ठीक है, यहां से हमें ए वाई की वैल्यू मिल जाएगी. क्लियर है यहाँ तक? अगर वर्टिकल फोर्स ए वाई और बी वाई है, बी वाई की वैल्यू पता है, तो ए वाई इज इक्वल टू बी वाई हो जाएगा डायरेक्ट, है ना. नीचे की तरफ से ए वाई लग रहा है, बी वाई हो गया, तो ए वाई माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास ए वाई की भी वैल्यू आ गई. क्लियर? अब आते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0. सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स, अब ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं. ax इज द वन हॉरिजॉन्टल फोर्स, bx इज आल्सो अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, 900 एंड 600 इज आल्सो अ हॉरिजॉन्टल फोर्स. तो हम डायरेक्ट ax माइनस bx प्लस 900, जो क्लॉकवाइज है उनको पॉजिटिव ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज को मतलब एक डायरेक्शन ले लो, कोई सा भी डायरेक्शन ले लो, या तो इक्वल टू के स्ट्राइक कर दो. ठीक है, तो यू विल गेट ax माइनस bx विल बी इक्वल टू -1500. यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखो नोड ए पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक ax लग रहा है, ay लग रहा है. ठीक है, दो ही फोर्स लग रहे हैं हमारे पास. तो ए पे ए की बात करेंगे, नोड ए की बात करेंगे, तो दिस इज योर फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है, नीचे की तरफ 2100, दिस इज ay जो लग रहा था हमारा, और ax हो गया और f1 हो गया. यहाँ पे हमारे पास कितने फोर्स निकालने के लिए हैं? वी हैव, मैंने क्या बताया था, हमारे पास दो फोर्सेज होने चाहिए जिसकी वैल्यू हमें ना पता हो, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं. तो हम क्या करेंगे? हमारे पास दो इक्वेशन है, horizontal summation of horizontal reaction, sorry, summation of horizontal forces will be equal to 0, ax will be equal to 0, डायरेक्ट आ गया. f1 will be equal to 2100, डायरेक्ट आ जाएगा. किससे? वर्टिकल फोर्सेस से 0. ठीक है, तो f1 आ गया 2100 और इक्वेशन bx भी हमारा आ जाएगा. अब देखो bx कहां से आया, सॉरी, हाँ ठीक है, bx हमारा कहां से आया? जो ax माइनस हमने ये रखा था ना, फर्स्ट इक्वेशन देखो, दिस इज ax माइनस bx इक्वल टू 1500 था. यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू रख दी? ax की वैल्यू रख दी 0, तो हमारा bx आ गया कितना? 1500. क्लियर है यहाँ तक? इसी तरह हर एक जॉइंट पे आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते जाओगे, आपका सॉल्व होता जाएगा. अब आप अगला नोड ले लो डी. ठीक है, लेकिन देखो किस नोड पे लेना है? जहां पे हमें की मतलब
हमें फोर्सेस पता हो, 2 मेंबर ना पता हो, या मतलब 1 मेंबर ना पता हो, तो वहां हम इजीली ले सकते हैं। ए से हम डी पे चले गए, तो डी का फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। 600 का लोड लग रहा था, F2 ऊपर की तरफ, F6, और ये F6 देख लो एक बार, डी पॉइंट देखो, हाँ डी पॉइंट यहाँ पे है, डी पॉइंट पे एक 600 लोड लग रहा है, ठीक है। इस पे एक रिएक्शन होगा ड्यू टू दिस मेंबर, ईडी मान लो, ठीक है, ईडी के कारण होगा और एक डीसी के कारण होगा, ठीक है। अब डीसी वाला जो फोर्स बोल रहे हैं वो एक पर्टिकुलर एंगल पे लग रहा है, ठीक है। तो एंगल पता करने के लिए मैंने बताया था tan थीटा विल बी इक्वल टू बेस बाय, जो बेस बाय आप सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो 4/2 हो जाएगा हमारा tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग, है ना। थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 4/2, जितनी भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग थीटा आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब डी जॉइंट पे देख लो, डी पे आपको देखो थीटा भी ना पता हो तो स्लोप पता है, स्लोप भी निकाल सकते हो, 2/1, वही वाली बात है, ठीक है। सॉरी ये डी पॉइंट है ना, हाँ डी पॉइंट है, ठीक है। डी पॉइंट पे 600 लग रहा है, एक नीचे से मेंबर फोर्स लग रहा होगा F2 जिसे मान लिया, और एक F6 मान लिया। अब F6 को रिजोल्व किया है एक cos थीटा और एक sin थीटा में, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 2/√5 F6, 1/√5 F6। क्लियर है। इसी तरह नोट सी पे कंसिडर कर लोगे, नोट सी, और सारी वैल्यू निकल आएगी। एक बार मैं देखूं कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब कुछ समझ में आया? एक बार देखो, क्वेश्चन करना पड़ेगा, जब तक क्वेश्चन खुद से नहीं करोगे ना तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। एक बार खुद से बैठ के क्वेश्चन करना है, तब जाके पता चलेगा क्या कर रहे हैं। क्योंकि देखो बताना मैं बोल दूंगा जॉइंट जॉइंट जॉइंट, एक एक जॉइंट पकड़ो, एक जॉइंट पे देखोगे कितने फोर्स लग रहे हैं ना, तब जाके क्लियर होगा, ठीक है। अंकिता, हाँ चलो आ गया, अंकिता का भी वो आ गया। एक बार और थोड़ा सा आगे देखते हैं, ठीक है। देखो सॉल्व करना है, मेन है न्यूमेरिकल, जितना सॉल्व करोगे उतना क्लियर होगा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, एक बार थोड़ा सा मेथड ऑफ सेक्शन भी देख लेते हैं, ठीक है। ये भी है वही, ये सब क्वेश्चंस लगाइएगा, ठीक है। क्वेश्चंस लगाओगे तो फ्री बॉडी डायग्राम बहुत सिंपल है, हर एक जॉइंट को पकड़ते चलो। पहला काम रिएक्शन निकालो, रिएक्शन मोमेंट इक्वल टू 0 लेके रिएक्शन आ जाएगी, रिएक्शन निकल गई, उसके बाद समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 रखोगे तो हमारी जितने फोर्सेज हैं जो आने होंगे आ जाएंगे। फिर उसके बाद बनाना शुरू कर दो फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे सारे फोर्सेज निकलते जाएंगे, ठीक है। एक बार ये न्यूमेरिकल देख लेना, एक बार आ जाते हैं मेथड ऑफ सेक्शन पे, ठीक है। मेथड ऑफ सेक्शन देखते हैं। देखो मेथड ऑफ सेक्शन, और ये पता कैसे चलेगा कौन सा है, अगर मेंशन कर दिया है कि मेथड ऑफ सेक्शन से सॉल्व करना है, देन यू आर गोइंग टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेक्शन, अनलेस अंटिल यू हैव टू जस्ट सी द क्वेश्चन। अगर वो पर्टिकुलर मेंबर में पूछा, अगर देखो इतना सारे फोर्सेस निकालना नहीं चाह रहे हो, वो पर्टिकुलर मेंबर में पूछा है कि मान लो मेरे को पूछेगा बीसी मेंबर में बताओ फोर्स, तो आप मेथड ऑफ सेक्शन लगा दोगे। देखो अभी क्वेश्चन दिखाता हूं, ये सारे क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। ना आए तब फिर मेरे से पूछना। एक बार आ गया मेथड ऑफ सेक्शन, ये भी नहीं है, डिटरमाइन द फोर्सेज, ये ईच मेंबर जहां बोल देगा यू हैव टू अप्लाई द मेथड ऑफ जॉइंट, ठीक है। जहां पर्टिकुलर मेंबर में पूछेगा ना, देन यू हैव टू अप्लाई द मेथड ऑफ सेक्शन। सारा ईच मेंबर ही चल रहा है, ईच मेंबर क्वेश्चन देखना है ना। अब देखो ये मैंने जनरल पीपीटी उठाई है स्लाइड शेयर से, ठीक है। डालना कोई भी ट्रस्ट से न्यूमेरिकल, तो आपको जनरल पीपीटी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। देखो आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब क्वेश्चन को कैसे देखना है, डिटरमाइन द फोर्सेज इन द मेंबर, पर्टिकुलर मेंबर पूछा है। अब आपको जरूरत नहीं कि सारे मेंबर के लिए सॉल्व करो, क्लियर। डिटरमाइन द फोर्सेज इन द मेंबर जीई जीसी बीसी ऑफ द ट्रस्ट, ठीक है। अब देखो इसने क्लियर क्वेश्चन में ही आपको किस किस नंबर पे पूछा है, जीई पे पूछा है, जीसी पे पूछा है और बीसी पे पूछा है। अब क्या करो, ऐसा सेक्शन काटो जिसपे कि तीनों में फोर्स निकल जाए, तो एक ही बार में आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आपको क्या चाहिए ना, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा किस मेंबर के लिए पूछा है, उसी मेंबर पे सेक्शन काटना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने सेक्शन बताया था सिर्फ 3 मेंबर से पास होना चाहिए, देन यू आर गोइंग टू अप्लाई द इक्विलिब्रियम इक्वेशन। 3 से ज्यादा होगा तो दैट विल बी क्रिएट कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो चूज अ सेक्शन ए, सेक्शन इट कट्स थ्रू द 3 मेंबर को कट करना चाहिए। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना लो उसका, ठीक है। एज इट इज हमने क्या किया, ट्रस को काट लिया और उसके बाद उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। अब जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो हमें अब पूरा मेंबर बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब जो मेन मेंबर है वही बना लो, ठीक है। मतलब उस पर फोर्स दिखा लो क्या क्या आएंगे, ऐसा नहीं है कि एकदम ही नहीं करना होगा। सारे जॉइंट पे नहीं निकालना पड़ेगा मेंबर, लेकिन हमें डायग्राम तो पूरा लेके चलना पड़ेगा ना, क्योंकि रिएक्शन
की जरूरत पड़ेगी। रिएक्शन तभी तो हमें पता चल पाएगा कि कितना कितना फोर्स आ रहा है। तो सबसे पहला काम हमने ये कर लिया। उसके बाद फिर से समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, उससे हमारा क्या आया 400 माइनस ए एक्स। ठीक है, अब जब आप मेंबर फोर्स पे निकालोगे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये समझना है, बाकी एज इट इज पीछे की तरह था। जब सेक्शन पोर्शन की बात करोगे ना, तो उस पोर्शन को सिलेक्ट करोगे, जैसे कि हमने ये पोर्शन लिया। ठीक है, अब आपको पूरा मेंबर डिस्कस नहीं करना है, आप एक राइट साइड वाला ले लो या लेफ्ट साइड वाला ले लो। अब आपके ऊपर है, आप दोनों सॉल्व करके देखना, दोनों से सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप एक सेक्शन ले लो, राइट वाला ले लो या लेफ्ट वाला ले लो, ठीक है, जो आपका मन करे। तो कोई एक मेंबर लोगे, उसके लिए सॉल्व करोगे, वही वैल्यू आएगी जो दूसरे मेंबर के लिए आ रही होगी। तो टेंशन की बात नहीं है, जो भी आप एक मेंबर लो वो क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब एक ही मेंबर से सॉल्व करो तो वो सेम एज इट इज दूसरा भी होगा। ठीक है, तो आप इसने क्या किया, लेफ्ट साइड वाला मेंबर ले लिया। ठीक है, तो इस पे आप देखो कितने फोर्स लग रहे हैं, कितने मतलब समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 रखोगे तो अब कितने कितने फोर्स लग रहे हैं। जैसे 300 मल्टीप्लाइड बाई 4 समेशन ऑफ मोमेंट जी पे, आपने जी पे मोमेंट ले लिया। ठीक है, तो जी पे मोमेंट ले लिया तो आपके पास वैल्यू आ गई किस चीज की, एफबीसी, एक मेंबर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एक मेंबर आ गया। इसी तरह समेशन ऑफ मोमेंट एट इक्वल टू सी, देखो हर पॉइंट पे आपका जो मोमेंट होगा ना दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इस तरह मतलब हर एक पॉइंट पे आप निकालते जाओगे तो एक एक मेंबर आ गया, एफबीसी आ गया, एंड यू विल गेट at putting the moment summation of moment equal to c equal to 0 you will get fge पे कितना फोर्स लग रहा है वो आ गया। अब आपके पास बचा एक, दैट इज fge। अब fge निकालने के लिए, सॉरी fbc आ गया, fge तो आ गया था आपके पास, fgc बचा हुआ है। ठीक है, fgc निकालने के लिए आपको वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 कर दो तो fgc आ गया। मेथड ऑफ सेक्शन से देखो कितना जल्दी सॉल्व हो गया। तो यही तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, मेथड ऑफ सेक्शन लगाना ये मतलब थोड़ा इजी मेथड है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप इस तरह का वो करोगे। ठीक है, क्लियर है। अब ये बताओ कितने लोग को आया, कितने लोग को नहीं आया।